Good morning everyone. Welcome to this video. Student, today we are going to revise chapter 4, that is matter and material. Okay? So let's revise it one by one. First of all, let's learn about matter. Anything which has mass and occupies space called matter. कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मास होता है या फिर वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो मैटर कहलाता है. ओके, एनीथिंग प्रेजेंट इन नियर यू इज कंसिडर अंडर मैटर. Okay, even particles of air are also occupy some space and mass, then also it is also a matter. Therefore, all things living, non-living have mass and they occupy space are considered as matter. Everything around us is made up of matter. सब चीज़ें हमारे आसपास जो बनी है वो सारी की सारी मैटर हैं. तो आपके आसपास जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है all are considering under matter. Are you getting it? Okay, so first of all let's learn about the molecule. It is the smallest unit into which a matter can be divided. मैटर की वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें मैटर डिवाइड हो सकता है. ओके, विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल नेचर, बिना उसके केमिकल नेचर को चेंज किए हुए, मतलब उसका केमिकल नेचर सेम रहेगा. बस उसके टूटने के बाद भी, मैटर के डिवाइड होने के बाद भी उसका केमिकल नेचर जिस पॉइंट तक सेम रहता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड molecule. They are so tiny that you cannot see them with your naked eye. वो बहुत छोटे होते हैं molecules, आप उनको अपनी naked eye से नहीं देख सकते. Okay? Now states of matter. The particles or molecule of different substance are arranged differently. अलग अलग सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप से अरेंज्ड होते हैं. डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट. और इन अरेंजमेंट की वजह से जो मैटर है वो 3 स्टेट में प्रेजेंट होता है. वन इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस. सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एंड गैसेस फॉर्म. इज इट क्लियर? You can see this is a solid form. Okay. In solid, molecules are closely packed. Solid form में क्या होता है? Molecules closely packed होते हैं. The force of attraction between the molecule is very high. Thus they are hard and rigid. They have a definite shape and volume. उनका एक definite shape होता है और volume होता है. The molecules in solid vibrate at their position but cannot move. So solid does not flow. इसीलिए solid flow नहीं करता है. अगर आप बात करें किसी एक लाइक वुड के पीस की, तो वुड का पीस क्या है? एक सॉलिड है. उसके मॉलिक्यूल्स फ्लो नहीं करते, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो फ्लो नहीं करते. दे आर रिजिड, वो हार्ड है. राइट? वाई? बिकॉज द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी हाई and they are closely packed. You can see in this picture it is very, and they only vibrate from their places only. That's why whenever you are hitting any solid, sound is coming from that particular metal or something. It's just because of the vibration. Okay, so you can see in this picture the molecules of water, it means liquid. In liquids, the molecules are less closely packed. Liquids में क्या होता है? जो molecules होते हैं वो थोड़ा सा एक दूसरे दूर होते हैं, less closely packed होते हैं. तो force of attraction between the molecules is lesser than that of the solid. Solid के मुकाबले जो molecules होता है liquid के, उनके बीच में जो attraction होता है, force of attraction होता है, वो बहुत कम, मतलब as compared to solid कम होता है. Thus they can move around a little. इसीलिए वो थोड़ा सा आगे move कर पाते हैं, अपनी position से move कर पाते हैं. And that is the reason why liquid can flow. Liquid जो flow करता है just because of these the less force of attraction between the particles and they can move from their places. They have a definite volume but no definite shape. आपके लिक्विड का एक डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है बट कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है. अगर आप एक ग्लास में लिक्विड को डालेंगे तो वो ग्लास का शेप ले लेगा. आप एक बकेट में डालेंगे तो बकेट का शेप ले लेगा. आप एक बाउल में डालेंगे तो बाउल का शेप ले लेगा. सो देयर इज़ नो डेफिनेट शेप
Okay, they take the shape of container in which they kept. So you can see the molecules of liquid here, the less attraction between the molecules as compared to the solid. You can see in this picture, these are the molecules of the gas. These are too far from each other and the force of attraction is negligible. It's negative. It means it's negligible. It means ये ना के बराबर है. Okay. इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर वाइड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. गैसेस में क्या होता है, आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज लीस्ट. और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत कम होता है. दस दे कैन फ्रीली मूव अबाउट एंड कैन गो इन एनी डायरेक्शन. इसीलिए वो फ्रीली मूव कर पाते हैं और किसी भी डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ परफ्यूम बोतल इज ओपन. अगर आप एक परफ्यूम बोतल का एग्जाम्पल लेंगे, वो जब ओपन होती है तो आप कहीं भी उसे आप काफ़ी दूर तक उसे स्मेल कर पाते हैं. वाई? देयर मॉलिक्यूल्स कैन फ्लो वेरी इजीली इन एयर. ओके. गैस हैज़ नाइदर एनी डेफिनेट शेप एंड नॉट डेफिनेट वॉल्यूम. कोई ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम है गैस का और ना ही कोई डेफिनेट शेप है. आपके रूम में भी स्प्रेड हो जाता है, आपकी एक बोतल में भी स्टोर हो जाता है. तो शेप भी नहीं है और ना ही कोई वॉल्यूम है उसका. ओके. So next topic is evaporation. Do you know the process of evaporation? You learned in the water also, water cycle. The topic of evaporation is there also and here also. Okay, the process in which the liquid state of the substance changes into gaseous state is called evaporation. Evaporation वो process है जिसमें आपका जो liquid state होती है वो convert हो जाती है gaseous state में. Okay, for example, when water is heated continuously for a long time, you will able to feel the formation of steam. तो ये आपका बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है जो आप डेली अपने घर में देखते हैं. लाइक आप जब कभी भी वाटर को बॉईल करते हैं तो वो स्टीम की फॉर्म में एयर में उड़ जाती है. राइट. So you can see in this picture the process of evaporation, the sun heat get evaporating the water and making the cloud. This is also a picture of water cycle. And then rain is giving the process of condensation. Then rain is coming and the water vapors coming down in the ground. And again, this is a water diagram of water cycle also, and also a process of evaporation is showing here also. So you can see this. जब आपकी गैस इवेपोरेट होती है तो ऊपर जाती है. ओके सॉरी, जब आपका लिक्विड इवेपोरेट होता है तो वो स्टीम की फॉर्म में ऊपर जाता है. जब आपने कई बार देखा होगा. और वही स्टीम अगर ठंडी हो जाएगी दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. ओके, we will in my next slide I am going to explain you about the condensation. So you can see condensation, the process of change of water from its gaseous state to its liquid state. वही आपके स्टीम का दोबारा वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट होना इज अ एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन. ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर. आपकी जो वाटर की बबल्स है, स्टीम है, जब वो ऊपर लिड में जा रही है, जब लिड ठंडी हो जा रही है तो वो दोबारा से वाटर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं. ओके, नाउ मेल्टिंग. The process of change from solid state of substance into its liquid state is called melting. जब आपका जो प्रोसेस है जिसमें आपका सॉलिड स्टेट जो सब्सटेंस की कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड स्टेट में, उस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं. जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपके आइस क्यूब्स है. ठीक है, आइस क्यूब्स को मेल्ट होते सबने देखा है. ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेल्टिंग. आइसबर्ग्स का गलना, दिस इज कॉल्ड अ प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग. आपको इजीली दिख रहा होगा ये आइस टपक रही है. लाइक हेयर इट इज़ मेल्टिंग, स्नो इज मेल्टिंग. सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज गोइंग ऑन. नाउ freezing तो you are doing in your home also, like freezing the water,
making it a snow, making it ice. The process by which substance in its state changes into solid state from its liquid state to solid state on cooling is called freezing. For example, water when kept in freezer freezes to form ice. This is because when water is exposed to cold temperature, its molecules slow down and gets packed to form a rest structure. So you can see in this picture, the water is converting into ice. So there are the all changes in the states, like with the help of melting, solid can change into water, and with the help of evaporation, water can change into gas in the form of steam, and again the steam can reversely change into the water with the help of condensation, and again the liquids are going to converted into again the solid form with the help of freezing process. Okay. So you can see this picture. It's very, you can recognize it very easily. कैसे कैसे आपके मॉलिक्यूल को हीट करने पे वो उसके मॉलिक्यूल्स में जब लाइक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से वो आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है. ओके. सॉलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन वाटर. अब वाटर में सॉलिबिलिटी सब्सटेंस की क्या है? ओके. सॉल्यूट क्या होता है? व्हेन वी डिजोल्व सब्सटेंस अ लिक्विड, द सब्सटेंस दैट वी आर एडिंग इज कॉल्ड सॉल्यूट. किसी लिक्विड में जब हम किसी सब्सटेंस को ऐड करते हैं तो उसे सॉल्यूट कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अब वाटर में सॉल्ट को या फिर शुगर को ऐड कर रहे हैं तो शुगर इज अ सॉल्यूट. एंड द लिक्विड इन विच सब्सटेंस इज मिक्सड इज कॉल्ड सॉल्वेंट. और वाटर में आप मिक्स कर रहे हैं शुगर को तो वाटर इज द सॉल्वेंट. ओके. एंड द मिक्सचर ऑफ बोथ इज कॉल्ड सॉल्यूशन. और दोनों का मिक्सचर क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा. ओके. गॉट इट? So you can see solids in water. The substance which dissolve in water are called soluble substance. जो भी substance आपके वाटर में soluble होते हैं, जो solid substance आपके वाटर में soluble होते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? soluble substance कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका salt हो गया, आपका sugar हो गया, जो बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है. ओके. सुगर क्रिस्टल, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल, सॉल्ट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन वाटर. और इनसॉल्युबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस हो गए जो डिजॉल्व नहीं होते हैं. ओके. उन्हें इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सैंड हो गया, चॉक हो गई, डस्ट हो गई. नाउ गैस इन वाटर. When we prepare a tea at our home, we may notice that when water start boiling, small bubbles starts forming inside the pan. आपने देखा होगा जब भी हम घर में चाय बना रहे हैं, चाय पानी गर्म कर रहे हैं, तो वाटर जब बॉईल होता है तो उसमें बबल्स उठना स्टार्ट होते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो वाटर में एयर मिक्स है वो बबल्स की फॉर्म में ऊपर उठ रही है. दिस शोज दैट देयर इज अ एयर डिजॉल्व इन वाटर. इससे ये पता चलता है कि आपकी जो एयर है वो डिजॉल्व है वाटर में. एंड इट इज ऑल्सो फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ फॉर एक्वाटिक प्लांट. और यही कारण है कि जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे कैन सर्वाइव inside the water. These plants animal breathe in oxygen dissolved in the water. Okay, so